So let us continue with the lecture, and we are going to use those transformations, row transformations, column transformation, which we have studied in the previous lecture, previous video, into finding x in this example. So see how this works. Here a is pre-multiplied. I'll take an example. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. साइड में हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. We have say 2 minus 1 3 1 multiplied with 1 and 2. Let us say ये जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है, उसको हम लोग 2/1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे रो वाइज, यहाँ पे कॉलम वाइज, और हम लोग को रिजल्ट में भी 2 और 2 नलिफाई होके 2/1 यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, number of columns 2, number of rows 2. Let us multiply 2 into 1. We are going to get 2 minus 2. First row, first column 0. Second row, second column, sorry, second row, first column 3 into 1 3, 1 into 2 2, 3 plus 2 5. Okay, only in the pre-multiplied matrix, understand this, huh? Pre-multiplied, word is pre-multiplied matrix. In pre-multiplied matrix, we are going to make row transformations, and let us say by row 1 interchange with row 2. Pre-multiplied matrix, what I'm doing is I'm interchanging row 1 with row 2. So यहाँ पे आएगा 3 1 2 माइनस 1. देखो रो 1 और रो 2 इंटरचेंज हो गया है. सेकेंड मैट्रिक्स में कुछ नहीं किया हुआ है. सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज लिखा हुआ है. ओनली इन द प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स आई हैव अप्लाइड रो ट्रांसफॉर्मेशंस. सेकेंड मैट्रिक्स में कुछ नहीं किया हम लोग ने. लेट अस सी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग रो वाइज जाते हैं, तो रो वाइज का रो ट्रांसफॉर्मेशंस का असर इसी मैट्रिक्स पे होता है, बिकॉज यहाँ मैट्रिक्स में हम लोग रो वाइज जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे. सो व्हेन वी आर गोइंग रो वाइज इन दिस 3 into 1 3, 1 into 2, obviously we are going to get 3 plus 2 5 ऊपर. The first place is the first element, and then we have 2 minus 2 0. Okay, so automatically यहाँ पे भी R1 interchange with R2 हो गया है. I have not done it. It has occurred automatically, and 1 और 2 वाला मैट्रिक्स unchanged है. Okay, so what happens is when you apply row transformations, mark this again, I'm repeating, when you apply row transformations in pre-multiplied matrix and you keep the second matrix as it is in the product, the same row transformations will be automatically applied in the matrix on the right hand side. Okay, any row transformation you apply here and then multiply again with the same matrix, सामने आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा obviously, but it will be with the same row transformations applied in the original matrix, the original result. Okay, so what we have here is AX equals B. So we have matrix 2 3, 1 minus 1 multiplied to x here, और यहाँ पे आएगा B which is 14 5 2 0. Now the trick here is to find x. अब डायरेक्ट मैट्रिक्स को तो डिवाइड नहीं कर सकते. We can't divide this
matrix. There is nothing called as matrix division, right? We have matrix multiplication, addition, subtraction है, matrix division नहीं है. ये matrix को इससे divide नहीं कर सकते. तो यहाँ पे trick ये है कि आप row transformations इसमें apply करो. अब प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किया है, इसको अनचेंज रखेंगे लाइक दिस, और सामने भी सेम रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होते जाएगा. ओके, सो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, वही रो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, एक्स एज इट इज रहेगा. यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो. विच मैट्रिक्स? Identity matrix. Identity matrix is one of it is unit matrix, also it is called as unit matrix. It is considered as one in matrix algebra. Identity matrix is the one of matrix algebra. Anything you multiply to I remains the same, doesn't change. Okay, so हम लोग के पास 2 by 2 matrix है. This is important. 2 by 2 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, यू हैव द स्टेप्स हियर. यू कैन फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना है A11 को 1 में. द फर्स्ट एलिमेंट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू 1. उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, आप इंटरचेंज कर सकते हो. यू कैन इंटरचेंज विद द एलिमेंट्स बिलो. डायरेक्ट वहाँ से 1 लेके आओ, यहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं, डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं, या तो फिर आप स्केलर मल्टीपल यूज़ करो, कोई दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल यूज़ करो, या तो डिवाइड बाय इटसेल्फ करो. तीन ऑप्शंस है आपके पास. इंटरचेंज करके लाएंगे तो बेस्ट है, दैट इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन. अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी स्केलर मल्टीपल लेके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग के पास अगर मैट्रिक्स है ऐसा और मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से एक काम करो, R1 माइनस R2 कर दो. सो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. 1 लाना ज़रूरी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए. A11 हैज़ टू बी 1, राइट? सो दैट इज स्केलर मल्टीपल यूज़ कर लिया. और अगर कुछ नहीं हो रहा है, स्केलर मल्टीपल से भी बात नहीं बन रही है, तो यू कैन टेक दिस एंटायर रो, डिवाइड दैट एंटायर रो बाय 3. अगर आप स्केलर मल्टीपल से बात नहीं बन रही है, यू कैन टेक दिस रो, डिवाइड दैट रो बाय 3, तो 3 by 3 1 आ जाएगा. 1 लाना ज़रूरी है. फिर वो 1 को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग 0 कर देंगे. वो 1 को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम लोग 0 कर देंगे. फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे बाजू में और यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको 1 कर देंगे. अब ऊपर से आप वो रो को यूज़ नहीं कर सकते. अगर आप ऊपर का रो यूज़ करोगे तो ये 1 और 0 स्पॉइल हो जाएगा. इंटरचेंज करोगे तो वो इंटरचेंज हो जाएगा. स्केलर मल्टीपल यूज़ करोगे, इसका स्केलर मल्टीपल यूज़ करोगे तो ये 0 को स्पॉइल कर देगा. तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डिवाइड बाय इटसेल्फ. एक ही ऑप्शन बचता है, डिवाइड बाय इटसेल्फ. ओके, और फिर इस 1 को हम लोग को यूज़ करना है और यहाँ पे ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को 0 करना है. 1 0 1 0. सो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 2 by 2. 3 by 3 के लिए अलग प्रोसीजर है. ओके, आई रिपीट, इसको हम लोग इंटरचेंज से 1 ला सकते हैं, यहाँ पे स्केलर मल्टीपल यूज़ करके 1 ला सकते हैं, जैसा कि आपको 3 ट्रांसफॉर्मेशंस बताया बारी बारी. और लास्ट में डिवाइड बाय इटसेल्फ करना चाहिए. डिवाइड बाय इटसेल्फ एडवाइजेबल क्यों नहीं है? देखो, आपने यहाँ पे 3 by 3 किया, 1 आ गया, वेरी गुड. यहाँ पे 1 by 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 by 3 हो जाएगा, बिकॉज आप पूरे रो को डिवाइड बाय 3 करोगे. सो फिर फ्रैक्शंस आने लगेंगे. सो डिवाइड बाय 3 कर लोगे, 1 आ जाएगा, बट बाजू में 1 by 3 हो जाएगा. फिर बाकी मैट्रिक्स का कैलकुलेशंस में आपको डिफिकल्टी आएगा. सो डिवाइड बाय इटसेल्फ ऑप्शन इज द लीस्ट प्रायोरिटी, लास्ट में रखा है. सबसे पहले इंटरचेंज, सबसे आसान
interchange. If interchanging is possible, very easy, do that only first. Second is, चलो interchanging possible नहीं है तो scalar multiple से 1 लेके आओ. Scalar multiple से भी 1 नहीं आ रहा तो divide by itself पे जाओ. ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है. अभी इसको मैं आपको यूज करके बताता हूँ. See how it works. So सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है by R1 interchange with R2. So R1 को अगर हम लोग R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 2 3 x 2 0 14 and 5. सेम ट्रांसफॉर्मेशंस उस तरफ भी अप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है और x को अनचेंज रखना है और ये चलते जाएगा ना. इसमें जो अप्लाई किया वो इसमें भी अप्लाई करना है. देखा आपने यहाँ पे जो हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी अप्लाई होता है. 1, 2 एज इट इज रहेगा. 1 और 2 वाला जो मैट्रिक्स है एज इट इज रहेगा. यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है वही उस तरफ अप्लाई करना है. सो मेरा x अनचेंज रहेगा और ये दो मैट्रिसेस चेंज हो जाएंगे. बराबर, दो मैट्रिसेस यहाँ पे सेम तरीके से चेंज हो गए, सेम स्टेप्स में चेंज हो गए और ये x एज इट इज रहेगा. ठीक है, x को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एज सेड इन द प्रोसीजर हियर, 1 ला दिया है हम लोग ने यहाँ पे, उस 1 को यूज करके इसको 0 करना है. कैसे, व्हाट इज द स्टेप? द स्टेप इज यू टेक R2 minus 2R1. The change will be in R2. I forgot to write that. The change will be in R2 and the change will be R2 minus 2R1. Change will be R2 minus 2R1. Okay. So क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे रो 1 एज इट इज है, अनचेंज्ड है, उसको लिख देंगे. 1 और -1 एज इट इज अनचेंज्ड है. R2 minus 2R1, 2 minus 2 0 कर देंगे. 3 + 2 हो जाएगा, -1 है यहाँ पे इसलिए. सो -2 × -1 + 2 हो जाएगा. 3 + 2 5 हो जाएगा. x = 2 0 14 - 4 10 मिलेगा आपको. 14 - 4 सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है. R2 - 2R1, 5 - 0 5. ओके, सो इधर 1 ला दिया है, ये 1 को यूज करके यहाँ पे 0 ला दिया. अब जाना है A22 के पास, उसको 1 करना है. A22 को 1 करना है, यहाँ पे बताया मैंने आपको. और एक ही ऑप्शन है अपने पास, डिवाइड बाय इटसेल्फ करो. ऊपर वाला रो यूज करने का कोशिश मत करो. इफ यू यूज ऊपर वाला रो तो ये 0 स्पॉइल हो जाएगा. बड़ी मेहनत से हम लोग ने यहाँ पे सेट किया है इसको, दैट विल बी स्पॉइल्ड. सो यू कांट यूज दैट. ऊपर वाला रो आपको जो भी है वो R2 में ही एडजस्ट कर लेना है. सो द स्टेप विल बी बाय R2 divided by 5. So what will be the transformation? R2 divided by 5. R2 divided by 5 करेंगे तो आएगा 1 0 -1 1 हो जाएगा. ये रो 2 में 0 1 हो जाएगा. x = what you get सामने is 2 0 डिवाइड बाय 5 you get 2 and 1. ओके, लास्ट प्रोसीजर में लास्ट स्टेप रहेगा 1 0 1 0. ओके, 1 0 1 सेट हो गया है. अभी इसको 0 करना है. वेरी सिंपल, यू कैन यूज दिस रो एंड एड इट, राइट. सो बहुत सिंपल रहेगा. What you can do is what you can do is by row 1, change will be in row 1, the change will be row 1 plus row 2. Okay, and after doing that change, row 1 plus row 2, चेंज विल बी इन रो 1, रो 1 प्लस रो 2. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1.
रिपीट अगेन, क्या हो जाएगा, 1 और -1 ये दोनों ऐड हो जाएगा, रो 1 में हम लोग रो 2 ऐड कर देंगे, 1 + 0 1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 0, व्हाट यू गेट इज x हियर इज इक्वल टू, सामने भी हमको ऑब्वियसली वो चेंजेस अप्लाई करना है, एंड व्हेन यू ऐड दिस अप हियर r1 + r2 आपको मिलेगा यहाँ पे 4 1 2 1 4 1 2 1. Okay, so ultimately what we get finally is ix is 4 1 2 1. ix होता है x, so ix is x, and what is x? ix is like 1 in matrix algebra, so हम लोग को x मिलेगा 4 1 2 1. That's the final answer. X is the final answer. Okay, so we have a solution here in front of us. Again, I'll just quickly take a recap of what we have solved here. So what we have solved is ax equal to b, हमको x find करना है, मैट्रिक्स A इधर है, B इधर है, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना है और इसको I में कन्वर्ट करना है. दिस इज द फ्लो चार्ट. कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट 1 लाना चाहिए, उसको यूज़ करके नीचे 0 लाना है, देन a22 को 1 करना है, ऊपर 0 लेना है, और यहाँ पे 3 स्टेप्स बताया प्रायोरिटी वाइज. द लास्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिवाइड बाय इटसेल्फ बिकॉज दैट विल इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. 1 लाना है, इंटरचेंज कर दिया, रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2, दैट इज द फर्स्ट. रो 1 इंटरचेंज विद रो 2 स्टेप. रो 1 इंटरचेंज विद रो 2 में 1 और -1 ऊपर आ गया, 2 3 नीचे आ गया. देन r2 - 2r1. सो यहाँ पे 2 है, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 लेकिन 5 हो जाएगा. 14 - 4 यहाँ पे भी जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वही राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना है. 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा. देन यू डिवाइड द सेकेंड रो बाय 5 because that is the only option we have here, and we do that, and then we add it to row 1. So this is the procedure. This is something which you'll have to write down and use it in the further sums. This is for 2 by 2. There is one more procedure coming. No, in fact 2 procedures coming in the next video where you're going to reduce this to use 3 by 3 and matrix by column transformations, by row transformations. We are converted to identity matrix. Okay, answer here is 4 2 1 1. We can verify that by putting it in the question. Question लो ax equal to b प्रूव करना है. अगर आपको फाइंड करना है कि ये सही सोल्यूशन है, you take the matrix A and multiply it to x. You'll get B. Okay? You go to the next example then. Yes, the next is 3 by 3. Next example is 3 by 3. Okay? Again, मैं आपको साइड में यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ फ्लो क्या रहेगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग को कन्वर्ट करना है A को. This is A. Okay. A11 is 1. Options दिया था मैंने आपको. Interchange. Right. Second option आपको दिया है scalar multiple. Third option आपको है divide by itself. यहाँ पे interchange with R2 and R3 दोनों पॉसिबल है. ओके, फिर इसको यूज करना है और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 0 करना है. इसको यूज करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 करना है. ओके,
सेंटर पे जाना है यार. आई अगेन पुट एम्फोसिस ऑन दिस. सेंटर पे जाना है. ए 2 को 1 करना है. अगेन द ऑप्शंस आर दैट ओनली. इंटरचेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंटरचेंज खाली नीचे के रो के साथ कर सकते हैं. ओनली विथ R3. इंटरचेंज इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू हैव, बट इंटरचेंज ओनली विथ R3 कर सकते हैं. इंटरचेंज ओनली विथ R3 कर सकते. R1 यूज नहीं कर सकते. ऊपर का अगर तुम ध्यान दो, इंटरचेंज ऐसा करके 1 यहाँ पे लेके आओगे तो ये वाला 1 भी नीचे आ जाएगा. यहाँ से कोई एलिमेंट अगर आप इंटरचेंज करके नीचे लेके आओगे तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा. इंटरचेंज R1 के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाला ऑर्डर स्पॉइल हो जाएगा. सो अभी R2 के में 1 लाने के लिए R1 को यूज़ नहीं करना, ना स्केलर मल्टीपल ना कुछ. ये सब कुछ खाली R3 का यूज़ होगा. ऊपर से कुछ अगर आपने यूज़ किया तो इधर 1 और 0 का स्पॉइल हो जाएगा अरेंजमेंट. ओके. I'm again and again telling you that is very important to bring 1 here. You can do these steps: interchanging, scalar multiplication, last में dividing by itself, but only with row 3 elements. You can't use row 1 elements. If you use row 1 elements, this 1 will spoil this 0 here. You go down, make third row second element 0, make the above first row second element also 0. Okay, then we go to third row third element, make it 1. The only option here is divide by itself. That's it. You can't use row 1, you can't use row 2. तो कर क्या सकते हैं, divide by itself ही करना पड़ेगा. इधर आप रो 2 रो 3 दोनों यूज़ कर सकते हो. इधर आपको खाली रो 3 यूज़ करना अलाउड है. इधर आपको कुछ भी करना अलाउड नहीं है डिवाइड के अलावा. डिवाइड करना है खाली. ओके. और फिर इसको यूज़ करेंगे अपन, और ऊपर ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम को 0 बनाएंगे, और इसको यूज़ करेंगे ऊपर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को 0 बनाएंगे. सो हो गया ना. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That's the identity matrix. Okay. Let's start the procedure in 3x3 matrix. यहाँ पे start करते हैं हम लोग solution. हम लोग के पास luckily यहाँ पे पहला 1 है तो कोई टेंशन नहीं है. उसको यूज़ करना है, और नीचे का एलिमेंट्स हम लोग को यहाँ पे 0 करना है. इसको 0 करना है. ओके. सो एक साथ मैं अभी यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, बिकॉज सिंस द रोज विच वी आर गोइंग टू चेंज आर डिफरेंट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बाय चेंजिंग इन R2, एंड इट हैज़ टू बी R2 प्लस R1, एंड इन द सेम स्टेप आई विल शो द चेंज इन रो 3. नो प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट रोज, एंड इट इज R3 माइनस R1. ओके. R2 प्लस R1 चाहिए और R3 माइनस R1 चाहिए. Okay, so we have 1 2 3 x and 8. रो 1 अनचेंज्ड है. पूरे प्रोसीजर में रो 1 अनचेंज्ड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 plus 1 3 3 plus 2 5 8 plus 3 11. Then we are going to have 1 minus 1 R3 minus R1. So 1 minus 1 0, 2 minus 2, oh very good, 0, 4 minus 3 1. Okay. 9 minus 8 1. So हम लोग ने ऐड कर दिया 0 3 5, फिर हम लोग ने सबट्रैक्ट कर दिया 0 0 1, और यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिया 9 minus 8, हम लोग ने सबट्रैक्ट कर दिया 1 आ गया. दैट्स गुड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, इधर से हम लोग 0 किया, यहाँ पे हम लोग 0 कर दिया, इसको 1 करना है. राइट. द सेंट्रल एलिमेंट हैज़ टू बी मेड 1 नाउ. द बेस्ट ऑप्शन इज इंटरचेंजिंग. वो अवेलेबल नहीं है, नीचे 0 है. So you can't interchange and bring 0 there. So
to get 1, you can't use ऊपर वाला रो, you can't take 3 minus 2 1. अगर तुमने 3 minus 2 1 किया तो इधर 0 minus 1 हो जाएगा. So R2 minus R1 करने से यहाँ पे 1 तो दिख रहा है, बट यहाँ पे 0 minus 1 आ जाएगा. सो ये स्पॉइल हो जाएगा, नहीं चलेगा. दैट्स वाई साइड ऊपर का रो यूज़ नहीं कर सकते, नीचे का रो यूज़ करना है. बट नीचे के रो में तो 0 है, तो 1 लाने के लिए हमारे पास ना इंटरचेंजिंग वाला ऑप्शन है, ना स्केलर मल्टीपल वाला ऑप्शन है, बिकॉज 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा. सो द ओनली ऑप्शन इज डिवाइडिंग रो 2 by itself. Yes, that will introduce fractions, इसलिए मैं मना करता हूँ. that is the last priority है उसको, but अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. okay, so what we are going to do is we are going to divide the entire row 2 by 3. जो चेंज नहीं होने वाला है उसको हम लोग पहले लिखेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, बिकॉज एवरी टाइम नाउ यू गोइंग टू पुट एवरी स्टेप यू गोइंग टू पुट 12 एंट्रीज. सो जो चेंज नहीं होने वाले प्लीज़ उसको आप पहले डालो. ओके, ना क्या आएगा यहाँ पे 0 1 फ्रैक्शंस आएगा 5/3 11/3. ओके, डन. नाउ द लास्ट स्टेप is to convert this to identity matrix. The last step which we have to show is by ये हो गया 0, ये हो गया 0 1 हो गया. लास्ट स्टेप नहीं, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप. ऊपर वाला हम लोग को यहाँ पे 0 करना है. नीचे तो 0 है ही, ऊपर हम लोग को 0 करना पड़ेगा. So according to the procedure 1 0 0 1 0 0, सेंटर में जाएंगे 1 हो जाएगा. सेंटर में 1 करने के बाद नीचे 0 करना है. ऑलरेडी है नीचे 0, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर 0 करना है, नीचे 0 करना है, ऊपर 0 करना है. और ऊपर हम लोग 0 करेंगे, नीचे वाला ऑलरेडी 0 है. ओके, सो इट इज द सेकेंड लास्ट स्टेप. ऊपर वाला 0 करना है, फिर इस 1 को यूज करके ऊपर का सारा 0 कर देंगे. बट पहले यस वी हैव टू डू दिस स्टेप. सो हम लोग को यहाँ पे 0 करना है. सो बाय R1 minus 2R2, the change is in R1 and it is R1 minus 2R2. Okay, what we have is 0 1 5/3 0 0 1. ये अनचेंज रहेगा 11/3 and 1. हमको क्या करना है R1 minus 2R2. सो R1 लेना है 1 minus 2 into 0 1 ही रहेगा. 2 minus 2 ऑब्वियसली इसको 0 करना है. 3 minus 10/3 आएगा. R1 minus 2R3 R1 minus 2R2. सो R1 minus 2R2 मतलब यहाँ पे आएगा 3 minus 10/3. ओके, 3 minus 2 times 5/3 is 3 minus 10/3. 3 minus 10/3 will give me minus 1/3. प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है, खाली रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं. मैंने कहीं पर भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं अप्लाई किया है. ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशंस यू हैव टू अप्लाई. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8 minus 22/3. 8 minus 22/3, what you get is 2/3. Okay, what you get is 2/3. Okay, now the next step will be the last step, and that will be
इधर 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, इधर 1 आ गया। अब ये दोनों को हम लोग को 0 करना है। सो हाउ डू वी डू इट? वी से द चेंज विल बी इन R2 एंड द चेंज विल बी R2 माइनस 5/3 R3। ये एक चेंज रहेगा, रो 3 को यूज़ करने वाले हैं हम लोग। एंड अगेन इट विल बी R1, change will be in R1, it will be R1 minus 2/3 R3. Okay, so what we have is repeat, यहाँ पे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही होने वाला है. That is what our intention is, right? सो आगे तो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया था 1 0 0 0 1. अभी इसको हम लोग 5/3 माइनस 5/3 0 कर देंगे, 5/3 माइनस 5/3 0 कर देंगे, माइनस 1/3 एंड सॉरी दिस स्टेप इज रॉन्ग हियर, इट शुड बी प्लस 1/3 R3. ओके, प्लस 1/3 R3. सो क्या होने वाला है, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 3 को और उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 5/3 माइनस 5/3 0 हो जाएगा. और इसको हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो माइनस 1/3 प्लस 1/3 0 हो जाएगा. ओके, सो वी हैव 1 ईयर. यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है 11/3 माइनस 5/3. ओके, ये भी 1 है. So what we are going to get is 11/3 minus 5/3. नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है यहाँ पे माइनस 1/3 ना, इसको 0 करना है हम लोग को, तो इसको हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे भी 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा 2/3 प्लस 1/3. ओके, सो फाइनली what are we going to get is Ix. क्या मिल रहा हम लोग को, Ix is equal to 3/3 1 6/3 2 1. बट Ix होता है x, right? So Ix is x. So what is the final answer we are getting? 1 2 1. The final answer which we get is 1 2 1. Okay, so that is how it works. Again we'll see the procedure, we'll see the question, how we went according to the procedure and got our answer. So the procedure, the question is this multiplied to x we get 839. अब डायरेक्ट डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है x फाइंड करने के लिए, तो x फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. ये प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है तो खाली रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं. ये रहा फ्लो चार्ट. फर्स्ट एलिमेंट 1 करना है, इंटरचेंज ऑप्शन है, स्केलर मल्टीपल ऑप्शन है, और डिवाइड बाय इटसेल्फ ऑप्शन है, वो लीस्ट प्रायोरिटी में है. फिर उसी 1 को यूज़ करके 0 0 करना है, सेंटर में 1 करना है. ऊपर वाला रो यूज़ नहीं कर सकते हैं, नीचे वाला ही यूज़ कर सकते हैं. इसको ऊपर लेके जाना है 0, नीचे लेके जाना है 0, लास्ट में जाना है. यहाँ पे ओनली ऑप्शन है डिवाइड बाय इटसेल्फ. यूज़ दिस 1 टू मेक द अबव एलिमेंट्स 0. वी स्टार्टेड विथ 1 ऑलरेडी है हम लोग के पास, उसको हम लोग ने यूज़ किया और 0 किया ऐड करके, यहाँ पे 0 किया सबट्रैक्ट करके, और यहाँ पे लकीली एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ मिल गए हम लोग को. अभी हम लोग सेंटर पे जाएंगे, 1 करेंगे, नीचे वाला रो तो यूज़ नहीं कर सकते. इसको हम लोग को 1 अगर करना है तो डिवाइड बाय इटसेल्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास, सो आई डिवाइड बाय इटसेल्फ. यस, यहाँ पे फ्रैक्शंस आ जाएगा 11/3 5/3, बट ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट हम लोग को सेकेंड लास्ट स्टेप पे जाना है. सेकेंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा, 1 0 0. हम लोग को 0 लाना है यहाँ पे. So for that what you do is you take R1 minus 2R2.
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R1 माइनस 2 R2 ये 0 हो जाएगा. ओके, R1 माइनस 2 R2, सो यहाँ पे हम लोग को उसके हिसाब से कैलकुलेशन मिलेगा 3 माइनस 10/3. R1 माइनस 2 R2, 3 माइनस 10/3 माइनस 1/3. यहाँ पे भी हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा. 8 माइनस 22/3, R1 माइनस 2 R2, 8 माइनस 22/3 2/3. R1 में चेंज आएगा. देन व्हाट हैपेंस इज यू गेट 1 0 0 1. यहाँ पे आया, ऊपर 0 किया, नीचे 0 किया, इधर जाओ, इधर 1 है उसको पकड़ो और फिर 5/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो. R2 माइनस 5/3 R3 एंड देन 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. R1 प्लस 1/3 R3, R1 प्लस 1/3 R3, R1 प्लस 1/3 R3 करने पर ये 0 हो जाएगा. 5/3 माइनस 5/3 ये 0 हो जाएगा. उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आएगा. येस, सो 2/3 प्लस 1/3 यू गेट 1 एंड 11/3 माइनस 5/3 यू गेट 2. 1 to 1, x is 1 to 1. Okay, so what is the final answer which we are getting x as? 1 2 1. You can verify the answer by putting 1 to 1 back in the question and you'll get RHS. I hope you understood the procedure well. This is the flow chart. You follow that flow chart, and it is, while doing homework you will feel that you are not getting the sums because it is a lengthy process. Somewhere or the other you will make mistakes while solving the problem. Don't get discouraged, keep solving, and over the time with practice you will be making less mistakes. Okay, mistake होने वाला है, स्टार्ट में होने वाला है, प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा and you will also reduce the number of mistakes which you make. I hope the procedure is clear. Okay, this procedure we are again going to use in the next video, and next video we are going to learn one more procedure, that is column transformations. Okay, this is finding or creating I using row transformations.